Namaskar, this is Akashwani Itanagar and I am your radio compare Mr. Wango Sosia. I warmly welcome you all to our special program. Today we are going to have a conversation with the person who has made tremendous contribution to the field of research, writing and documenting our history with factual evidence with a special focus on Nokte tribe. Yes, you've heard it right. He is the author of the book The Native Tea, published in 2022, and Miles Bronson and the Noktes, published in 2023, and the founder of the Nokte Digest, Mr. Wangtum Humcha Lowang. Sir, I warmly welcome you to this special program. Thank you, Wango. First of all, I would like to say that it's a privilege to be invited here at All India Radio Itanagar. Thank you. So, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए sir, first of all, we would like to know about you, sir. Your childhood, your early education. Could you just recall and share it with us, sir? Okay. I was born in October 25, 1996. I am from Namsang village, Diomali, in Tirap district. I did my schooling in Diomali only. My primary education was at NTC school, then Sanam school, and then I completed my class 12 from Ramakrishna Mission School, Narottam Nagar. And I did my graduation from Don Bosco College, Julang, master's from Namsai. And currently I am working as a guest lecturer in Wangcharaj Kumar Government College, also at Diomali. Since childhood, I have been interested in history, especially you can say the Roman history. And I was also interested in archaeology. Yeah, I okay. wanted to be an archaeologist, but I didn't know how to do it. So that's why I am where I am. Okay. So my interest is being shown through this one, Nokte Digest only. Okay. Okay, that's amazing, sir. Before we dive into our main topic, which is the unsung heroes, before that, we just like to ask you that if someone who is unfamiliar with the Nokte tribe asks you about what would you say? And like how you describe Tirap and the Nokte people? Okay, most of the people from outside this one Tirap district, they very in a good tone, they call us the headhunters. So वो तो था ही हम लोग, no doubt. But we were like headhunters से ज़्यादा हम लोग था. We were also traders था हम लोग. We used to trade salt, जो एक very important commodity था हम लोग का region में, especially in Upper Assam. तो जिसका कारण से we had very good relations with the Ahom people, and they also used to respect us. So we were greater than headhunters. So इसके बाद में हम लोग का there's very achievements there was one Nokte chief. He was the chief of Namsang Boduria group. He ended the constant war that used to go between Ahom and Noktes for the salt trade. So he accepted Vaishnavism in early 18th century. So after that, you can say that the war between Ahom and the Noktes, it ended. So his Nokte name was Hote, as per the documents we have. And he was known as Latha Khunbao by the Ahom people. And when he accepted Vaishnavism, he was known as Narottam. So there are many histories other than headhunters. Okay. So we should, the people of outside people, they also know that. And also the culture and everything. So this much. Okay, thank you so much. I think through this conversation, we will able to learn so many things, which we have never heard about Nokte. That's amazing, sir. Coming to the main topic of today's, I think the recent, the news that have circulated that the Tirap district administration has officially recognized the two prominent Nokte freedom fighter from the region for this resistance against British colonial expansion in 19th century. First is the then chief of Kheti village, Wangto Lowangji, and the second is chief of Bodoria village, Wangman Lowangdong. Being from a Tirap, it's very new for all of us, heard about these freedom fighters, because it's been a very long time that we have been, won't say lacking, but it's been a gap that we couldn't find the authenticity, because we see Tirap as Nokte, we have a lot to offer. We have a lot of things we haven't traced out yet. And I think this is really a big achievement for all of us, sir. I just wanted to, let's dive into this particular topic. First, we would like to start with the then chief of Khete village, Wangtolo Wangji. Would you like to share his role during that period, sir? I got all the authentic documents from National Archive of India from New Delhi. I got access there when I was a member of the Unsung
hero committee for Arunachal Pradesh. And my trip to Delhi was sponsored, you can say, by Sri Wanglin Lowang Dongji. He's the Honorable MLA of Boduria Bogapani. And because of his help only, I was financed. My stay was being financed there. And I also like to thank our Honorable Minister, Sri Wanglin Lowangji. So I approached him also. So when he knew about this, heard about this one, we went to Khete village and we interacted with the people there. Okay. And we also got to see the cannonball that was supposedly fired during that Anglo-Nocte War of 1842. So the story, you can say, it began in between April to June 1842. Okay. The chief of Khela and Khete village, they were summoned by the Britishers in Assam, and they were made to sign some kind of agreement that these two chiefs, you won't fight anymore between yourself. So they signed it, they agreed. But after a few months, you can say November 1842, the chief of Khete, they attacked Khela. So this naturally must have hurt the Britishers because they were the mediator. So there was one Captain J. Brody. He was a sub-assistant of Sibsagar, Assam. So he and a detachment of armed British soldiers, they went to Khete village and they wanted to know why they broke the agreement. Okay. So this must have the then chief of Khete, Wangto Lowang, he must have felt that they were coming to challenge them, his authority. So in that response, the chief of Khete and his warriors, they attacked Captain Brody and his soldiers, where one British soldier was killed and 4 others were wounded. So they were forced to retreat. So say about after a month, they came back with, they had to launch a punitive expedition. Otherwise, they feared that they will think the Britishers is powerless. So I think 3 regiments came. One was Assam Light Infantry, one was local artillery, and one was 2nd Seventies Regiment, led by Captain S.F. Henne, Captain Brody, Lieutenant Rowlett, and Lieutenant Reed. So they came, they attacked Khete village. They also fought, the people of Khete, under the leadership of Wangto Lowang. But obviously, they were defeated, and the Britishers burned down Khete village. And the people of Khete, they took refuge in, I think, Waka area and Lajo area. So the Britishers, they returned back and set up one outpost in Khela village, and so that to deter future resistance. So I think the significance of this war, you can say, was that after this attack, after this war, the Britishers, they never came back. I mean, to assert their dominance in their region. They used to call the chief of respective villages to Assam, but armed expedition that never took place in Tirap district after that war. So this is, you can say, one of the most significant conclusion of this Anglo-Nocte war. So this was the main role of Wangto Lowang. Yeah. I think that is so interesting for me also and to all the listeners that, hearing something new about our place, about the Tirap, that's amazing. Moving ahead, we also know the contributions of Wangman Lowang Dongji during that period also. Would you like, highlight his contribution, his role during that period, sir? I will begin from the start. In 1833, I think the British Crown, they passed an act known as the St. Helena Act. So because of that act, the monopoly that the British East India Company was enjoying on tea trade in China was revoked. So after this act was passed, the British East India Company, they wanted to start the commercial tea business in India. So the starting point was Assam. There was one, you can say, researcher, Charles Alexander Bruce. Okay. So they tried to plant Chinese tea sapling in Assam, but that was not compatible. आपका मौसम का साथ नहीं मिला, तो मर गया. तो ऐसा होके they started to research कि ये रीजन में कहीं लोकल मिलता है कि नहीं, लोकल टी मिलता है कि नहीं. तो ऐसा करके वो लोग सिंगफो राजा से भी मिला, वो सब अलग कहानी है. So वैसा करके Charles Alexander Bruce, he was stationed at Jaipur, which falls under Dibrugarh district, Assam. So वहाँ में वो पोस्टिंग था. He was superintendent of some tea garden. उसने एक्सप्लोरेशन करते समय मिला कि मतलब वही जो सिंगफो लोग चाय पीता है, वो चाय स्पीसीज वो जयपुर रीजन में भी मिलता है.
सो दे फाउंड दैट, तो लगा कि यहाँ में नेचुरली उगता है तो यहाँ में शुरू करने से कैसा रहेगा. सो ज़मीन किसका है पता लगाया वो लोग. तो दे फाइंड आउट दैट इट बिलोंग टू द चीफ ऑफ बोडुरिया एंड नामसंग विलेज. सो वो लोग से मतलब परमिशन लिया, लीज में लिया. दे यूज टू पे एन एनुअल फी ऑफ आई थिंक 200 to 250 रुपीज. सो ऐसा परमिशन लेने का बागान को खोला वो लोग, नामसंग एंड रुकांजरी टी गार्डन्स. It became functional in October 1840. So from 1840 to 1860 तक 1860 तक ब्रिटिशर लोग आपका दोनों राजा को पेमेंट करता था. बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम द चीफ ऑफ नामसंग विलेज लाइक ही ब्लॉक्ड द चीफ ऑफ बोडुरिया विलेज कि आप लोग मत लो भाड़ा. तो आई थिंक ही डिडंट रेजिस्ट, मे बी आई डोंट नो. सो ऐसा करके नामसंग राजा को ही मिल रहा था फ्रॉम 1860 to 1870s. सो ऐसा होते समय क्या हो गया कि कॉन्फ्लिक्ट बिगेन टू राइज बिटवीन द चीफ ऑफ नामसंग एंड द ब्रिटिशर्स. सो ये शुरू हुआ था 1873 को. अंदर में पैसा को लेके, इसको लेके, मतलब जो बागान का मैनेजर था विलियम मिंटो बोलता था. तो दोनों का बीच में बहुत झगड़ा होता था, छोटा मोटा डिस्प्यूट होते रहता था. सो द गवर्नमेंट थॉट, द ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट थॉट कि लीज का कारण से ये प्रॉब्लम हो रहा है. सो व्हाई डोंट वी एनेक्स द लैंड. आपका नामसंग और हुकांजवी बागान को हम लोग ले लेगा और उसका बीच में जो जो जमीन आता है उसको हम लोग ले लेता है. सो दे लाइक ये चीज़ को प्लेस किया. फिर सो बोडुरिया राजा को मालूम हो गया. सो बोडुरिया राजा भी आके बोला कि ये ज़मीन मेरा है, आप लोग ऐसा एनेक्स नहीं कर सकता है. वही समय में बहुत चीज़ चेंज हो रहा था. फॉर एग्जाम्पल 1874 को जो हम लोग का जो ILP है, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर ऐसा कुछ है, तो वो पास हुआ था 1874 को. ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था. फिर साथ ही साथ वही साल को आसाम एडमिनिस्ट्रेशन जो बंगाल का अंदर आता था वो समय में. सो वही ईयर में आई थिंक फरवरी को बंगाल और आसाम एडमिनिस्ट्रेशन अलग हो गया और आसाम को एक नया चीफ कमिश्नर मिल गया. वो फर्स्ट चीफ कमिश्नर का नाम था कर्नल R.H. कियंटेज. सो उसने मतलब एक ऑर्डर पास किया, एक नोटिस पास किया कि बोडुरिया राजा को आप लोग बोल दो, भगवान लोंगडोंग को बोल दो कि बागान का उसको कुछ राइट नहीं मिलेगा, कुछ पैसा नहीं मिलेगा, एंड वी विल एनेक्स दैट लैंड. तो ये न्यूज़ जो आपका लेफ्टिनेंट होलकोम्बे, वो आपका असिस्टेंट कमिश्नर जयपुर का वो था, तो उसने उसको बुलाया भगवान लोंगडोंग को. तो वो गया तो उसमें बताया कि आपको ये बागान का ये सब ज़मीन का कुछ नहीं मिलने वाला है. सो आप शांति से बैठो. अगर आप कुछ रेजिस्ट करता है, कुछ वो करता है, तो ऊपर से ऑर्डर है कि वी विल अटैक यू. और हम आप लोग को अटैक करना इसलिए आसान हो क्योंकि बोडुरिया आसाम से सामने है और बहुत आसानी से हम लोग पहुँच जाएगा. तो ऐसा टाइप का वार्निंग उसको दिया गया था. तो भगवान लोंगडोंग तो ये चीफ कमिश्नर को मिला नहीं, लेफ्टिनेंट होलकोम्बे से खबर मिला, तो गुस्सा उसके ऊपर में था कि आपने ही कुछ किया है. तो मे बी ही वॉज इंटेलिजेंट, उसको मालूम था कि अगर ब्रिटिश का साथ डायरेक्ट अटैक होगा तो बस्ती प्रॉब्लम हो सकता है. सो लाइक आई सेड बिफोर, हम लोग सोल्ट ट्रेड में बहुत फेमस था और बोडुरिया आसाम का जो रास्ता है बहुत आसान से और से क्रॉस हो जाता था. तो वो बोडुरिया राजा ने इसका फ़ायदा उठाया, बदला तो लेना ही है. सो जब उसको खबर मिला कि लेफ्टिनेंट होलकोम्बे, तो वो लोग का एक सर्वे टीम 200 आदमी जैसा था, 50 सिपाही था पकड़ लीजिए, बाकी सब पुलिस था. तो वो लोग लोंगडिंग तरफ गया सर्वे करने के लिए. तो बोडुरिया राजा को खबर मिल गया. तो दे फर्स्ट वेंट टू सेनवा विलेज, वहाँ में 5 days जैसा कुछ बैठा. तो आफ्टर दैट दे वेंट टू नीनू. तो नीनू में वो लोग कुछ घंटा ही कैम्प किया था कि नेक्स्ट डे को अटैक हो गया. तो अटैक में फर्स्ट कैजुअलिटी आपका लेफ्टिनेंट होलकोम्बे था. Maybe because he was the main target of the chief of Boduria. तो आपका जो इसका साथ में एंग्लो वांचोवार जो स्टार्ट हो गया था. तो ऑब्वियसली इतना 80 आदमी को मारा. एंग्लो वांचोवार में इतना 80 आदमी मारा गया. 2 ऑफिसर था, सिपाही 10-15 था, बाकी लोग सब कुली लोग था. तो 1 महीना ऐसा के बाद में इन्वेस्टिगेशन हुआ. बहुत बड़ा आर्मी इकट्ठा हुआ ब्रिटिशर लोग का प्यूनिटिव एक्सपीडिशन के लिए. तो ऐसा करके जब प्यूनिटिव एक्सपीडिशन किया, प्रिजनर्स को पकड़ा, तो सबका मुख से सबका जो कन्फेशन है, रिकॉर्डेड कन्फेशन, सब लोग वही बोल रहे हैं कि डू नॉट आस्क अस, हम लोग को मत पूछो, पूछने से लानू लोग को पूछो. सो वांचो पीपल दे यूज्ड टू कॉल बोडुरिया लोग को लानू, एंड दे यूज्ड टू कॉल नामसंग पीपल एज लासा. तो ओनली द पीपल ऑफ लानू नो कि क्यों मारा गया था. कहानी हुआ क्या कि भगवान लोंगडोंग ने कायमोय बस्ती बोल के है
लोंगडिंग में। तो वो लोग को एक सॉल्ट का पैकेट भेजा, तो उसका साथ एक मैसेज भेजा कि अगर फ्यूचर में साथ में खाना है हम लोग तो यू हैव टू डू व्हाट वी टेल यू। ओके और फिर नीनू का राजा को भी वही खबर दिया कि अगर आसाम जाना है फॉर बार्टर फॉर ट्रेड, दे यूज टू क्रॉस बोडुया ओनली। ओके बोडुया वाज ए इम्पोर्टेंट विलेज फॉर देम। सो इफ यू वांट टू गो टू आसाम फॉर ट्रेड, सो यू हैव टू अटैक दिस पार्टी। तो सबका मुख से ब्रिटिशर लोग को ये खबर मिला कि बोडुया ही कल्पित है, बोडुया ही बोल रहा है, वो लोग ही जानेगा। एंड द ब्रिटिशर्स ऑल्सो कंक्लूडेड कि इट्स पॉसिबल बिकॉज आपका ये होलकोम्बे का ऊपर में वो लोग ने बदला लिया। फिर गुस्सा बागान को लेके था क्योंकि बोडुया राजा को कुछ राइट नहीं मिलेगा वो हम लोग ने नोटिस दिया था। तो इन्वेस्टिगेशन में सब ये सब मालूम चला, लेकिन ब्रिटिशर लोग भी ऑनरेबल था आई थिंक। सो दे डिसाइडेड दैट कि सिंस वी डोंट हैव फिजिकल प्रूफ वो लोग का इन्वॉल्वमेंट, तो हम लोग वो लोग का ऊपर में मिलिट्री अटैक नहीं करेगा, लिखा हुआ था। बट पनिशमेंट मस्ट बी मीटेड, एक तरह का पनिशमेंट तो देना चाहिए। तो फर्स्ट पनिशमेंट था मई 1875, जिसमें वो लोग ने ऑफिशियली रिटर्न में नामसांग एंड हुकानजुरी टी गार्डन्स और उसका बीच में जो जमीन आता है उसको एनेक्स कर दिया ऐसे पनिशमेंट। उसके बाद फिर पनिशमेंट फिर और दिया। नंबर 1 पनिशमेंट था कि जब नीनू में अटैक हुआ था वो लोग को अपर में, तो भगा दौड़ी में बंदूक छूट गया, वो लोग भी बंदूक को लेके चला गया जो 100 आदमी लोग था। फिर क्या क्या सामान लोग ले गया, तो वो सब का रिट्रीवल का काम बोडुया राजा को दिया। आप लेके आना है ये सब। तो बोडुया राजा ने किया, लेके आया, जितना भी बंदूक गायब हुआ है सब अकाउंटेड हो गया। फिर एक था कि लाइक वांटेड फिजिटिव जो अटैक में इन्वॉल्व था, आई थिंक ही वॉज फ्रॉम सेनोआ विलेज, वो लोग को नहीं पकड़ पा रहा था ब्रिटिशर लोग। तो ये काम भी बोडुया राजा को दिया कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, इसको लेके आओ और सरेंडर करवाओ। तो बोडुया राजा ने, उसको तो मालूम है कौन कहाँ में है, तो नीनू बस्ती में था। तो नीनू बस्ती का राजा को बोला कि इसको सरेंडर कर दो। तो दोनों का बीच में मतलब नीनू राजा भी बोला हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन नीनू राजा ने उसको जाने ही दिया बस्ती से, चला जाओ बाद में नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा हम लोग। तो वही भागा दौड़ी समय में वो फिजिटिव को बोडुया लोग ने पकड़ के ब्रिटिश का उधर में सरेंडर कर दिया। सो दिस टाइप ऑफ पनिशमेंट वाज गिवन टू वांगबान लोवांगडोंग। सो दिस वाज वन काइंड ऑफ रेजिस्टेंस। अपना बस्ती को बचाया और उसका जो मकसद था मेन तो उसका दुश्मनी लेफ्टिनेंट होलकोम्बे था। ये ऑर्डर उसका मुख से सुना है, वो कॉलोनल चीफ कमिश्नर लेना देना नहीं था। तो दिस वाज आई थिंक सो इंस्पायरिंग, क्योंकि हम जिस तरह से आपको सुन रहे हैं हमको लगता है कि ये एक रातों रात का कोई काम नहीं, इससे लंबा सफ़र रहा है आपका, है कि नहीं सर? और इतनी चीज़ों के बारे में जानना निकालना सिर्फ खुद के लिए नहीं, फॉर द सोसाइटी की सच को जानने के लिए ना, चीज़ों को सीखने के लिए कि हमारे साथ हुआ क्या था, किस तरह से था ये सब ना सर इतना आपका लंबा सफ़र रहा है, आपका इतना एनर्जी इस पे लगा है, आपका व्हाट इज़ योर नेक्स्ट विजन सर? आप क्या देखना चाहते हैं इसके बाद सर? अगर ये अनसंग हीरो फ्रीडम फाइटर का बात करें तो अभी हम चाहते हैं कि उसको स्टेट लेवल में रिकॉग्नाइज हो, आफ्टर दैट नेशनल लेवल पे। फिर हमारा जितना हो सकता है नोक्टे डाइजेस्ट जो है उसको हम एक ऑफिशियल एक ऑफिस बनाने मन है, ताकि हम लोग का नोक्टे जो सोसाइटी है कुछ भी हो वहाँ में आके हम लोग रिकॉर्ड कर सकता है। सो नेक्स्ट स्टेप मेरा ये है नोक्टे डाइजेस्ट को लेके, और जो काम कर रहा है वो तो कंटिन्यू चलते रहेगा, जितना भी हम रिट्रीव कर सकता है वो सब करते रहेगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आगे के सफ़र के लिए। एंड आई थिंक वी ऑल नो दैट हाउ द नोक्टे डाइजेस्ट दिस प्लेटफॉर्म इज़ डूइंग अ ट्रेमेंडस जॉब फॉर द कम्युनिटी ऑफ नोक्टे, फॉर द पीपल यू नो। और सर मेरा ये आखिरी एक सवाल है सर आपके लिए, बस आज का जो हमारा जो अनसंग हीरोज है सिर्फ नोक्टे तक सीमित नहीं है। वी हैव नीनू एतीस को भी हमने देखा, इसके साथ साथ खमतीस में भी हमने देखा, मातमुजामो उसम को देखा। आपके हिसाब से आपका क्या विचार है इन सब को अरुणाचल के जो विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट्स है, ये जो हिस्ट्री है विद फैक्चुअल एविडेंस, उनको किस तरह से कितना हद तक कितना ज़रूरी है कि हमारे अरुणाचल के लोगों को इसके बारे में पता चलना, हमारे सिलेबस में इंक्लूड करना, लोगों को इन बारे में जानना? आपका क्या विचार है इस पर सर? मेरा विचार तो वही होगा कि कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये हम लोग का जो स्टडी करिकुलम जो होता है उसमें इंक्लूड करें। ऐसा करने से क्या होगा कि देयर विल बी ए सेंस ऑफ प्राइड हम लोग का अरुणाचली आदमी लोग का बीच में, कि हम लोग का आदमी भी इन्वॉल्व था
इनडायरेक्टली होने से भी इंडिजिनियस थ्रू से फ्रीडम स्ट्रगल पे इन्वॉल्वमेंट था, क्योंकि इतना बड़ा वार हुआ है। आपका जो खमती वार भी आई थिंक 1839 को हुआ था। सो यू कैन से दैट अगर डेट को देखा जाए तो इंडिया का फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोल सकता है आप। मानता है वो लोग हार गया, और एंग्लो वांचो वार भी वो लोग भी अपना जो लड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं जरूर असर पड़ा होगा। Yes, sir. ब्रिटिशर अगर 100 कदम आने का सोच रहा होगा, लेकिन उसका कारण से 50 कदम ही आगे आ पाया, तो एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो वो सब हम लोग का आदमी लोग जानने से बहुत अच्छा है। Okay. Sir, as we come to the end of the program, before you wrap up, would you like to share a message with our listeners, sir? अगर इफ़ वी लाइक यू कैन से अरुणाचल एक बहुत डाइवर्स स्टेट है। यहाँ में तरह तरह का आदमी है, बहुत ट्राइब्स है। सो हम लोग का एक कॉमन चीज़ हम लोग ढूंढना है, जिसका कारण से हम लोग यूनाइट हो सकें। वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर्स डाइवर्सिटी, एंड एट द सेम टाइम हम लोग का उसको एक्सेप्ट भी करना है, और कॉमन चीज़ को मेनली कंसंट्रेट करना है। सो ये मैसेज है यूनिटी के लिए। Okay, this is such a beautiful message. Thank you so much. Once again, sir, thank you so much, sir, for sharing your time with us. And we have learned so much, and I hope you will continue to inspire us. And we'll meet again with another special program. Thank you, everyone, for being part of this. Have a good day. This is Akashwani Tanagar, and I'm your radio compare, Mr. Wango Sosia. Namaskar.